کروں گا محترم منور احمد کنڈے صاحب کی خدمت میں کہ نعتیہ کلام کوئی پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ آج کا مشاعرہ محترم محسن احسان صاحب کی یاد میں ہو رہا ہے جی. تو ان کی لکھی ہوئی ایک نعت میرے سامنے ہے. میں ان کے اس نعت کے چند اشعار ماشاءاللہ پڑھ دیتا ہوں. غبار رہ کو بھی شناسائے نوبہار کیا. غبار رہ کو بھی شناسائے نوبہار کیا. غریب شہر تھا مولا نے شہر بیار کیا. سبحان اللہ. محبتوں کے عجب حرف لوح دل پہ لکھے. محبتوں کے عجب حرف لوح دل پہ لکھے. شفاعتوں کو معانی سے ہم کنار کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دو کے واسطے بھی خیر کی دعا مانگی. دو کے واسطے بھی خیر کی دعا مانگی. رفاقتوں کی روایت کو اختیار کیا. بہت اچھے. چلے زمیں سے تو افلاک کی حدیں چھو لیں. چلے زمیں سے تو افلاک کی حدیں چھو لیں. رکے تو کرنوں کو لمحات میں شمار کیا. غرور خود نگری پاؤں سے غرور خود نگری پاؤں سے کچل ڈالا. حصول دولت و حشمت کو بے وقار کیا. لباس فقر کو خلعت سے معتبر جانا. منافقت کے لبادے کو تار تار کیا. مجھے یہ فخر ہے میرے رسول نے محسن. مجھے یہ فخر ہے میرے رسول نے محسن. یتیموں بے کسو بے آسرا سے پیار کیا. سبحان اللہ. شکریہ. جی اب میں دعوت کلام دوں گا. محترم رفیع صاحب ہیں, پورا نام نہیں میرے یاد رہا, وال صاحب سے رفیع شاہ نواز. رفیع شاہ نواز صاحب سے کی خدمت میں گزارش ہے کہ آئیں اپنے کلام سے نوازیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں پہلے یہ گزارش کر دوں کہ میں کوئی شاعر نہیں ہوں, لیکن کچھ ذہن میں سوچ آئی تو اس کو لفظ میں پرو دیا. اب وہ پتہ نہیں اس کا وزن ٹھیک ہے کہ نہیں, یا الفاظ آپ بہتر جانتے ہیں, لیکن میں شاعر نہیں ہوں, پہلے بتا دوں کہ کچھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. میرے مولا میری بس یہی ایک دعا ہے. میرے مولا میری بس یہی ایک دعا ہے. جیوں تو بس ایک تیری رضا پر جیوں میں. میرے مولا میری بس یہی ایک دعا ہے. جیوں تو بس ایک تیری رضا پر جیوں میں. مروں تو بس ایک تیری رضا پر مروں میں. مروں تو بس ایک تیری رضا پر مروں میں. کر لے قبول بس یہی میرا ایک مدعا ہے. ماشاءاللہ. بہت خوب رفیع صاحب. بہت اچھا ہے. آہستہ آہستہ ہمارے قافلے میں آپ شامل ہو جائیں گے. باذوق ماشاءاللہ باذوق ہیں. جی شاعری بھی شروع کر دیں گے انشاءاللہ. ایسے ہوتا ہے, قدم بڑھائیں آپ, اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. عبد الباسط انور صاحب ہیں ابو ظبی سے. جی ہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ایک غزل سنا دیں جناب محترم عبد الباسط انور صاحب کی اجازت سے. پہلے چند مصرے اور پھر غزل. جسے جو دیکھنا ہو دیکھ لیتا ہے اس دنیا میں. کوئی کہتا محبت اور عبادت کون کرتا ہے. ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جنہیں یہ سب میسر ہے. کٹھن اتنی نہیں راہیں یہ محنت کون کرتا ہے. واہ واہ واہ. اچھا ہے. بدی نیکی کی دو راہیں صدا سے ہیں چلی آتی. یہ ہے وہ ریل کی پٹری جو چاہ کر بھی نہ مل پاتی. یہاں جو ظرف والا ہے
उसी का दिल उजाला है, खुदा को चाहने वाला वो गफलत कौन करता है। बहुत अच्छे। एक गजल है, अब न पीछे मुड़ जाना, सोच कर कदम रखना, अब न पीछे मुड़ जाना, सोच कर कदम रखना, साथ चलने आए हो। छोटा मैट्रेस निकालो नीचे से। ये आप जारी रखें। अब मैं जारी रखें। अब न क्यों पीछे मजा डांट रही है? मुड़ जाना, सोच कर कदम रखना, साथ चलने आए हो। हाँ मैं मोहब्बत हूँ, और होंगे दुनिया में जिनको जर की ख्वाहिश हो, मैंने जर को बांटा है, मैं सभी की चाहत हूँ, दोस्ती निभाऊंगा, दुख खुशी में आऊंगा, जो कहो वो कर गुजरूं, इसलिए मैं उल्फत हूँ, नेको बद की राहें हैं, सामने दिशाएं हैं, हक की राह चलना है, झूठ गर हो नफरत हूँ, रब की मेहरबानी है, जिंदगी ये फानी है, कामयाबी है, जो करो मैं नुसरत हूँ, बादलों से उड़ता हूँ, छाँव दे बरसता हूँ, वो हवा का झोंका हूँ, सांस लो मैं फरहत हूँ, तुम उदास मत होना, मैं गजल सुनाऊंगा, भीड़ में इस दुनिया की एक मैं ही खुरबत हूँ। साथ दो जो अनवर तुम, पास तुम रहो जब भी, फिक्र करो तुम कब, साथ हूँ मैं राहत हूँ, अब न पीछे मुड़ जाना, सोच कर कदम रखना, साथ चलने आए हो। हाँ मैं मोहब्बत हूँ। बहुत शुक्रिया, वाह बहुत 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 शुक्रिया। आसफ चुगताई साहब हैं मोहतरम, इन्होंने नात पढ़नी थी, अब पहुंच गए हैं, तो चलो आदम चुगताई साहब की गजल सुनते हैं इनसे। आसफ चुगताई साहब लंदन से। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ये आदम चुगताई साहब की ये गजल है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ताहद नजर जश्ने बहारों का समा है, वाह। ताहद नजर जश्ने बहारों का समा है, फूलों के तबस्सुम पे मोहब्बत का गुमा है, देखा है जब तेरी अनायात का करीना,
دیکھا ہے عجب تیری عنایات کا کرینہ، کہنے کو تو ہے دوست مگر دشمن جاں ہے، واہ واہ، احساس جسے کچھ بھی نہیں عہد وفا کا، احساس جسے کچھ بھی نہیں عہد وفا کا، اس شخص پہ رونا بھی تو آنکھوں کا ضیاء ہے، بہت اچھے، واہ بہت حق بات کا کہنا نہیں آسان رفیق کو، حق بات کا کہنا نہیں آسان رفیق کو، حق بات کا انجام زمانے پہ عیاں ہے، بہت اچھے، غم جس نے دیے اس پہ ہی جان دیتا ہے آدم، غم جس نے دیے اس پہ ہی جان دیتا ہے آدم، انداز وفا تجھ سا کہیں اور کہاں ہے، انداز وفا تجھ سا کہیں اور کہاں ہے، تا حد نظر جشن بہاروں کا سما ہے، پھولوں کے تبسم پہ محبت کا گماں ہے، واہ واہ، شاعری کے ساتھ آواز، بہت خوب، بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب آصف چغتائی صاحب لندن سے، جو آدم چغتائی صاحب کی غزل پڑھ رہے تھے۔ اب اچھا، گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو صدر صاحبہ مجلس ہیں ان سے اجازت لینا ضروری ہوتی ہے ہر شاعر کو۔ میں نے تو ان لسٹ جو نام پڑھنا ہوتا ہے تو آگے اجازت لے کر پلیز پڑھیں، انہیں آپ صدر صاحبہ مشاعرہ سمجھیں، صدر ممنون حسین نہ سمجھیں۔ جزاک اللہ عنایت، انشاءاللہ آگے سے ایسے ہی ہوگا۔ سب کی صدر نہیں، بالکل اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب سینئر ہیں، آپ پڑھیے، آئیے۔ اگلی خیرہ ہیں ہماری نجمہ محبوب، نجمہ اوکاڑا پاکستان سے ہیں، وہ 1 سال سے شاعری کر رہی ہیں، ملٹری اسکول میں سروس کر رہی ہیں۔ میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آئیں اپنے کلام سے نوازیں۔ محترمہ نجمہ محبوب نجمہ۔ جی نام نظر تو آ رہا ہے، جی نام تصویر بھی ہے، آواز نہیں آ تصویر رہی بھی ہے ان کی۔ جی جی، ان کا مائک جو ہے وہ آن نہیں ہے یا لگا نہیں ہے، سم تھنگ۔ مائک آن کریں یا پھر ہاں وہ بول تو رہی ہیں لیکن آواز نہیں آ رہی۔ زیادہ شائی ہو گئی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ شائع ہونے کا تو کوئی سوال نہیں ہے۔ چلو آگے چلتے ہیں، پھر یہ اپنا صحیح کر لیں ٹیلی فون، آگے چلتے ہیں۔ شاعرہ کو شائع ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اصل میں یہ سا ملتا ہے نا، پہلے لفظ ملتا ہے تو شاعر بدل کا خیال رکھتے ہیں۔ میری آواز اب آ رہی؟ جی آ رہی ہے۔ جی شکریہ بہت بہت۔ جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ پہلے تو سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو میرا سلام، اور
आप लोगों ने मौका दिया मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और अब मैं आप लोगों की नजर करूंगी। जी मुझे इजाजत। इरशाद। दर बदर हो गई, दर बदर हो गई, दुख किसी को क्या, मौत सर पे जिंदगी को क्या। वाह 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 बहुत अच्छे। साथ जब तक रहा, साथ जब तक रहा, शादमानी रही, जब पिछड़ ही गया अब खुशी को। वाह मिट गया चाहतों मिट गया चाहतों का निशान, मिट गया दिल रहा ही नहीं, दिल लगी को क्या। मैंने जिसने फैशन किए बोझ उस पे पड़ा, अब गिला किस लिए, सादगी को क्या। वाह वाह अच्छा है। बेज़मीरों का करना कभी ना जिक्र, बेज़मीरों का करना कभी ना जिक्र, दर से उल्फत है तो किसी को क्या। वाह वाह बहुत खूब। मिट रही है गुनाहों की बस्ती, मिटे डर खुदा का है जब बंदगी को क्या। डर बंदगी खुदा का है जब मौसमी है मजा किसी को मिले, मौसमी है मजा हर किसी को मिले, फूल खिलते रही सादगी को क्या। आखिरी शेर है, आज तूफान आए या पर्वत गिरे, आज तूफान आए या पर्वत गिरे, खौफ नजमा भरा को क्या। वाह 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 तो आप लोगों की बहुत बहुत खूब। शुक्रिया जी। कोई और पढ़ेंगी कि मैं बताऊं? जी अगली शायर, अच्छा हमारी अगली शायरा हैं मोहतरमा शादिया आलम शादिया साहिबा कराची से। वो हमारे शायरों में तशरीफ लाती रहती हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा कलाम होता है उनका और बहुत अच्छा पढ़ती हैं। मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करता हूं कि आएँ अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठाक साहिब सदर, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? जी जी हमें आ कुछ रही कम है। आवाज आ रही थी। सलाम। आ रही है, दूर दूर तक आ रही है। कैसे ठीक ठाक? तो बस सदर साहब से एक इजाजत चाहेंगे, एक गजल हम आपकी समाअतों की नजर करते हैं। इरशाद। जब भी मिलते हो मुझे खास बना देते हो, जब भी मिलते हो मुझे खास बना देते खास हो, बना खास देते बना देते मुझ में चाहत के हसी फूल खिला देते हो। शुक्रिया। मुझ में चाहत के हसी फूल खिला देते हो, सोचती क्या है तुम्हें ऐसी शरारत आखिर, सोचती क्या है तुम्हें ऐसी शरारत आखिर, चाक पर बैठे परिंदों को उड़ा देते हो। उड़ा देते हो। अच्छा चाक पर बैठे परिंदों को उड़ा देते हो। उड़ा देते हो। क्या तुम्हें कम है मेरी शमा मोहब्बत की ज़िया, क्या तुम्हें कम है मेरी शमा मोहब्बत की ज़िया, मेरे होते हुए चिरागों को बुझा देते हो। बहुत शुक्रिया। मेरे होते हुए चिरागों को बुझा देते हो। सोचती हूँ तुम्हें मुझसे है मोहब्बत कितनी, सोचती हूँ तुम्हें मुझसे मोहब्बत है कितनी, महकती कलियों को मेरा नाम बता देते हो। बहुत शुक्रिया। महकती कलियों को मेरा नाम बता देते हो। इश्क के खेल में तुमको ये हुनर है हासिल, इश्क के खेल में तुमको
ये हुनर है हासिल, हार के खुद को यहाँ मुझको जिता देते हो। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। अच्छा शेर। हार के खुद को यहाँ मुझको जिता देते हो। क्या बात। बात करते नहीं, हंसते नहीं, मिलते भी नहीं। बात करते नहीं, हंसते नहीं, मिलते भी नहीं। तुम भी क्या खूब मोहब्बत की सजा देते हो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत शेर। बहुत अलग। बात करते नहीं, हंसते नहीं, मिलते भी नहीं। बात करते नहीं, हंसते नहीं, मिलते भी मिलते भी नहीं। क्या खूब मोहब्बत की सजा देते हो। सजा देते हो। वाह या क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और सुना सकते हैं? बिल्कुल। मैं चांद अशार की प्लीज। अगर मुझसे कोई शिकायत नहीं है, अगर मुझसे कोई शिकायत नहीं है, तो क्या मैं ये समझूं मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत नहीं। अच्छा ठीक है। बहुत अच्छा है। अगर मुझसे कोई नहीं है, तो क्या मैं ये समझूं मोहब्बत नहीं है। वाह। खुदा बन रहे हैं यहाँ सब जमीन के, खुदा बन रहे हैं यहाँ सब जमीन के। किसी को किसी की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। वाह वाह वाह। किसी को किसी की जरूरत नहीं है। जुदा कर लिए हैं सभी उसने रास्ते, जुदा कर लिए हैं सभी उसने रास्ते। मुलाकात की कोई सूरत नहीं है। वाह वाह। या मुलाकात की कोई सूरत नहीं है। वो मेरा नहीं है ये बताने पे भी अब, वो मेरा नहीं है ये बताने पे भी अब ताज्जुब ये है उसको हैरत नहीं है। ताज्जुब ये है उसको हैरत नहीं क्या है। बात। फसानों में ढलने लगे हो तो सुन लो, फसानों में ढलने लगे हो तो सुन लो। फसानों की कोई हकीकत नहीं। क्या बात है। फसानों में ढलने लगे हो तो सुन लो। फसानों की कोई हकीकत नहीं नहीं है। तुम्ही से है इनमें सभी रंग वरना, तुम्ही से है इनमें सभी रंग वरना। ये दुनिया कोई खूबसूरत नहीं है। खूबसूरत नहीं। क्या बात। तुम्ही से है इनमें सभी रंग वरना। ये दुनिया कोई खूबसूरत नहीं है। आखिरी शेर आपके समातों की नजर के समझती रही जिसको मैं शाज़िया आलम, समझती रही जिसको मैं शाज़िया आलम। वो मेरे ख्यालों की जन्नत नहीं है। जन्नत नहीं है। मेरे ख्यालों की जन्नत नहीं है। वाह वाह। अगर मुझसे कोई शिकायत नहीं है, तो क्या मैं ये समझूं मोहब्बत नहीं है। वाह वाह। बहुत अच्छी बात। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी मोहतरमा शारिया आलम शारिया साहबा अपना कलाम सुना रही थी। अब मैं दावते कलाम दूंगा जनाब मुबशर शहजाद साहब। एक कथा सुना देते हैं। ग्लासगो की ठंडी हवाओं से मोहतरम मुबशर शहजाद साहब से गुजारिश है कि आए अपना कलाम से नवाजें। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस तरह अपने ही जख्मों को हवा दी मैंने, इस तरह अपने ही जख्मों को हवा दी मैंने। ये क्या हुआ? जुर्म उसका था सजा दी मैंने। बहुत जुर्म खूब। उसका था सजा दी मैंने। पहले कंदील जलाई के जहां हो रोशन, पहले कंदील जलाई के जहां हो रोशन, और फिर वो कंदील बुझा दी मैंने। वाह वाह। और फिर वो कंदील कंदील। बहुत अच्छा। मुबशर साहब बेशक कहता ना पड़े। कुछ शोर ज्यादा हो रहा है कहीं। नहीं, शुक्रिया बहुत बहुत। अब मुबशर शहजाद साहब ग्लासगो से मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि आए अपने कलाम से नवाजें। रेडियो एंकर हैं, इनका एक मजमूआ कलाम शाया हो चुका है। बहुत अच्छी शायरी करते हैं, मैं उन्हें वेलकम करता हूँ। आए और अपना कलाम पेश करें। मोहतरम मुबशर शहजाद साहब।
जी अस्सलाम वालेकुम। मोहतरमा सदर साहबा की इजाजत से एक कलाम पेश करूंगा। सबसे पहले अपना कलाम पेश करने से पहले मोहसिन एहसान साहब का एक कलाम चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करूंगा, इजाजत चाहूंगा। मोहसिन एहसान साहब वैसे हमारा जाती ताल्लुक भी उनसे रहा है। वो हमारे शहर में भी एक दफा आए तो एक मुशायरे में स्टेज पर सदारत कर रहे थे, तो उनकी दूर से नजर मुझ पर पड़ी तो इंतजामिया को कहने लगे कि मुझे उस शख्स से मुलाकात करवाएं, वो जो सामने कुर्सी पर बैठा हुआ है उसको बुलाएं। तो इस तरह से उन्होंने मुझे याद फरमाया। और हमारे बहुत से दोस्तों के उस्ताद भी रहे हैं पेशावर यूनिवर्सिटी में, इंजीनियर मुबारक अहमद साहब, और इसके अलावा और भी बेशुमार तालिब इल्म हमारे दोस्त साथी ऐसे हैं जो उनके शागिर्द रहे हैं। और कहा यह जाता है कि वो किसी जमाने में अहमद फराज के भी उस्ताद थे और बहुत ही आला उम्दा शायरी करते थे और बहुत ही एक नफीस इंसान थे। उनकी याद में आज हम ये मुशायरा कर रहे हैं। उनके कलाम से चंद अशार। गुबारे राह को शनासाए नौ बहार किया, गरीब शहर था मौला ने शहर यार किया। मोहब्बतों के अजब हर्फ लोहे दिल पे लिखे, शफाअतों को मानी से हम किनार किया। अदू के वास्ते भी खैर की दुआ मांगी, रफाकतों की रवायत को अख्तियार किया। चले जमीन से तो इफलाक की हदें छू ली, रुके तो किरणों को लम्हात में किया। लबा से फक्र को खिल्लत से मोतबर जाना, मुनाफिकत के लिबादे को तार तार किया। कहते हैं अमल ना हो तो ये दुनिया जहाने बेमायनी, ये राज सबकी निगाहों पे आश्कार किया। और आखिरी शेर है जनाब मोहसिन एहसान साहब का कि मुझे ये फख्र है मेरे रसूल पाक ने मोहसिन यतीमों बेकसो बेआसरा से प्यार किया। सुभान अल्लाह। थे अशार जनाब मोहसिन एहसान साहब के। अब मैं अपने 4-5 अशार अपने कलाम से इजाजत चाहूंगा पढ़ने की। अपने इतराफ के जंगल से पशेमा होकर नस्ल इंसान कभी देखिए इंसान होकर, ओजज़े खुद ही नजर आने लगेंगे तुमको, कभी देखो तो शबो रोज को हैरान होकर। आ गया हाथ में परवाना बख्शिश जैसे, आ गया हाथ में परवाना बख्शिश जैसे, मुतमईन हो गए हम सिर्फ मुसलमान होकर। बहुत अच्छे। खत्म होते ही नहीं मसल के दी के झगड़े, खत्म होते ही नहीं मसल के दी के झगड़े, देखते रोज हैं सब दस्तो गिरीबां होकर। काहिली
यूं ही नहीं दहर में शेवा ओ अपना, काहिली यूं ही नहीं दहर में शेवा अपना, मुश्किलें हमको मिली हैं कई आसान होकर। आखिरी शेर है, सब यही सोच रहे हैं मुबश्शिर दिन रात, सब यही सोच रहे हैं मुबश्शिर दिन रात, फिक्रे अंजाम से क्या होगा परेशान होकर। इतना ही कलाम था। बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत खूब, अच्छा कलाम। जी शुक्रिया बहुत बहुत मुबश्शिर शहजाद साहब। इसके बाद जनाब मोहतरम हमारे बुजुर्ग शायर हैं शाइख नसीरपुरी साहब, जिनके 2 मजमूए कलाम आ चुके हैं और एक तैयार हो रहा है, तो मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि आए अपने कलाम से नवाजें। बहुत ही कोना मशक शायर हैं माशाअल्लाह, तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आए अपने कलाम से नवाजें। शाइख नसीरपुरी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारा आज इज्तिमा था, वहाँ से मैं सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए आया हूँ, तो शुक्र है मेरे आते ही मेरी बारी भी आ गई। तो जज़ाकुमुल्लाह। एक छोटी सी गज़ल और 3 शेर अर्ज करके मैं इजाज़त चाहूँगा, मुझे फिर दोबारा जाना है। जी इरशाद। सदर साहिबा हैं हमारी फरहीन चौधरी साहिबा। जी सदर साहिबा से इजाज़त चाहता हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल इजाज़त जी। अर्ज किया है कि धरती लहू लहू है, आसमान लहू लहू। धरती लहू लहू है, आसमान लहू लहू, ख्वाहिशें मजरू अरमान लहू लहू, और मुंह मोड़ के वतन से अब चल दिए हैं दूर, देखे नहीं है जाते इंसान लहू लहू। देखे नहीं जाते इंसान लहू लहू। बहुत खूब। दुनिया में काश कोई सुनता मेरी कहानी, लेकिन यहाँ सभी का है दामान लहू लहू। नहीं लंबी है ना। शुक्रिया। जिस अशवाए नाज पे परवाने थे नसार, है आज वही शम्माए फिरोजा लहू लहू। सुनते आए हैं कि दीद भी तो ईद होती है, लेकिन यहाँ है ईद के सामान लहू लहू। मकतार्ज है कि शायक की बेबसी भी तो कीजिए इलाज, इसका भी है आज शौके फरावां लहू लहू। वाह वाह बहुत अच्छे। धरती लहू लहू है, आसमान लहू लहू, और ख्वाहिशें मजरू अरमान लहू लहू। और 3 शेर का जो मैंने जिक्र किया, तो वो 3 शेर अर्ज हैं कि बादे सरसर भी आहिस्तगी से गुजरती है, बादे सरसर भी आहिस्तगी से गुजरती है, कि फूल की पत्ती से भी नाजुक लबादा है मेरा। बहुत खूब। चमकती बिजलियों के पास अब के घर बनाऊंगा, चमकती बिजलियों के पास अब के घर बनाऊंगा, ये ख्वाहिश है मेरी और दिल है आमादा मेरा। और आखिरी शेर के उजड़े दिलों की फिर से बसाऊंगा बस्तियां, दिलों की फिर से बसाऊंगा बस्तियां, गो नस्ल शायर हूँ मगर दिल है खानजादा मेरा। जी शुक्रिया बहुत बहुत। अब मैं तमाम सामीन और शायरों से इजाजत चाहूंगा, मुझे अपनी उसमें जाना है इज्तिमा में। जी जाएं। जी शुक्रिया बहुत बहुत शामिल हुए और आपने शुक्रिया, बहुत अच्छा कलाम पेश किया।
जज़ाकमुल्लाह। अब मैं दावत कलाम दूंगा जनाब मोहतरम डॉक्टर तारिक अनवर बाजवा साहब, हमारे डॉक्टर हैं और इनके 2 मजमूए कलाम आ चुके हैं, मंजर आम पर आ चुके हैं। माशाल्लाह ये इस रफ्तार से ये शायरी पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं कि मैं हैरान होता हूँ बाद वक्त इनकी शायरी पर। और शायरी भी बड़ी मतलब के पढ़ने वाली और देखने वाली है। रदीफ और माशाल्लाह, बड़ी माशाल्लाह। महारत हासिल है इनको। वाह तो माशाल्लाह। मैं आए जनाब मोहतरम डॉक्टर तारिक अनवर बाजवा साहब तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जज़ाकल्लाह राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तारुफ का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा सदर साहिबा की इजाजत से बिल्कुल जी। एक गजल पेश खिदमत है। ये ताज़ा गजल है कि मिट्टी से मैं बनाया गया पहली बार था। वाह। मिट्टी से मैं बनाया गया पहली बार था, कुछ नूर से बने हुए एक इब्ने नार था। मिट्टी से मैं बनाया गया पहली बार था, कुछ नूर से बने हुए एक इब्ने नार था। था वो इबादतों में गर इतना ही मोतबर, था वो इबादतों में गर इतना ही मोतबर, उसको फिर एक सजदे में क्यों इतना आर था। तो फिर एक सजदे में क्यों इतना आर था। और अर्ज किया है कि मंजिल तो दूर थी अभी चलना हुआ कठिन, मंजिल तो दूर थी अभी चलना हुआ कठिन, मैं आबला पा मुब्तदिए राह गुजार था। बहुत खूब। मंजिल तो दूर थी अभी चलना हुआ कठिन, मैं आबला पा मुब्तदिए राह गुजार था। और शेर अर्ज है कि वाकिफ नहीं हुआ हूँ गुलों से जो अब तलक, वाकिफ नहीं हुआ हूँ गुलों से जो अब तलक, जिस रास्ते चला हूँ वही खारजार था। और अर्ज किया है कि बांधा था मैंने रख्ते सफर सोच कर यही, बांधा था मैंने रख्ते सफर सोच कर यही, शायद उसे भी मेरा कहीं इंतजार था। क्या कहना है। दिल पा गया सुकून मेरा इतना ही जानकर, दिल पा गया सुकून मेरा इतना ही जानकर, उसका भी दिल मेरे लिए ही बेकरार था। उसका भी दिल मेरे लिए ही बेकरार था। और मालूम तो न था कि फना में ही है बका, मालूम तो न था कि फना में ही है बका, जान इसलिए लुटा दी मुझे उससे प्यार था। मालूम तो न था कि फना में ही है बका, जान इसलिए लुटा दी मुझे उससे प्यार था। और मुख्तार है कि तारिक कहाँ गए उसकी तलाश में, तारिक कहाँ गए उसकी तलाश में, शहरक से भी करीब अगरचे वो यार था। वाह क्या कहने। अगरचे वो यार था, और मिट्टी से मैं बनाया गया पहली बार था, नूर से बने हुए एक इब्ने नार था। और अगर सदर साहब की इजाजत हो तो एक छोटी सी गजल और पेश खिदमत है, अगर इजाजत है तो। जी अर्ज किया है, मैंने तुम्हें कहा कि वो नहीं कर, जो देख कर तेरा एक जलवा, जो देख कर तेरा एक जलवा निहाल होते कमाल होते। वाह वाह। देख कर तेरा एक जलवा निहाल होते कमाल होते, जो पाक सोहबत में तेरी रहकर ख्याल होते कमाल होते। कमाल होते। देख कर तेरा एक जलवा निहाल होते कमाल होते,
ہوتے جو پاک صحبت میں تیری رہ کر خیال ہوتے کمال ہوتے، اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں وہ بزم آرائیاں کے جن میں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں وہ بزم آرائیاں کے جن میں جواب جو بھی سبھی کے کر سوال ہوتے کمال ہوتے۔ اور وہ یہ شعر غور طلب ہے کہ وہ اہل صفا جو بیٹھے رہتے کہ بات سننے سے رہ نہ جائے، وہ اہل صفا جو بیٹھے رہتے کہ بات سننے سے رہ نہ جائے، اے کاش ہم بھی ابو ہریرہ بلال ہوتے کمال ہوتے۔ بہت خوب بھائی، لال ہوتے کمال پھر سے پڑھیے گا ڈاکٹر صاحب، پھر سے پڑھیے گا۔ واہ بتان وہم و گماں کی دنیا سے دل لگایا تو کیا کمایا، بتان وہم و گماں کی دنیا سے دل لگایا تو کیا کمایا، متاع علم و یقین سے جو مالا مال ہوتے کمال ہوتے۔ بہت اچھی، بہت اچھی، بہت کمال غزل۔ نگاہ اپنی حسین چہرہ تلاش کرتی ہے آئینے میں، نگاہ اپنی حسین چہرہ تلاش کرتی ہے آئینے میں، جو دیکھنے میں تیرا ہی عکس جمال ہوتے کمال ہوتے، دیکھنے میں تیرا ہی عکس جمال ہوتے کمال ہوتے۔ اور فدا کیا ہے جو مال و دولت نہیں تجھ پر یہ کوئی احسان، تیری اطاعت میں ہم اگر بے مثال ہوتے کمال ہوتے۔ اور محبتوں نے عجیب رشتوں میں باندھ رکھا ہے دوستوں کو، محبتوں نے عجیب رشتوں میں باندھ رکھا ہے دوستوں کو، ہمارے جذبے جو ساتھ اہل و عیال ہوتے کمال ہوتے، ہمارے جذبے جو ساتھ اہل و عیال کمال ہوتے۔ اور یہ کہتے سنے ہیں ہم نے، سبھی یہ کہتے سنے ہیں ہم نے، گئی جو ان کی کبھی حکومت، رانا صاحب آپ کے لیے اسپیشل شعر ہے، سبھی یہ کہتے سنے ہیں ہم نے، گئی جو ان کی کبھی حکومت، کہ ہم جو کرسی پہ پھر سے اپنی بحال ہوتے کمال ہوتے۔ یہی آرزو رہ جاتی ہے، کمال ہے۔ یہ کہتے سنے ہیں ہم نے، گئی جو ان کی کبھی حکومت، کہ ہم جو کرسی پہ پھر سے اپنی بحال ہوتے کمال ہوتے کمال ہوتے۔ اور ہے کہ کس قدر خوش نصیب طارق جو پیدا اس دور میں ہوئے ہیں، کس قدر خوش نصیب طارق جو پیدا اس دور میں ہوئے ہیں، کہا یہ کتنوں نے گر محمد کی آل ہوتے کمال ہوتے، کہا یہ کتنوں نے گر محمد کی آل ہوتے کمال ہوتے، وہ دیکھ کر تیرا ایک جلوہ نہال ہوتے کمال ہوتے، پاک صحبت میں تیری رہ کر خیال ہوتے کمال ہوتے۔ شکریہ جناب۔ اچھا، مجھے نظر آ رہے ہیں یہ محترم محمود چغتائی صاحب ناروے سے نظر آ رہے ہیں، کچھ پڑھنا چاہیں گے آپ؟ رانا صاحب میں بالکل تیاری دے وچ نہیں ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم۔ اوکے ٹھیک ہے، میں دعوت کلام دوں گا، شکریہ۔ میں دعوت کلام دوں گا محترم عبدالحمید حمیدی صاحب کینیڈا سے، ہمارے منتظم بھی ہیں، ہمارے بہت اچھے شاعر بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں لہن داؤدی بھی عطا کیا ہے۔ تو اب تک کوئی بھی شاعر نے سر نہیں جگایا، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ سر بھی جگائیں اور اپنا کلام بھی سنائیں پلیز۔ جی رانا صاحب بہت شکریہ، محترمہ صدر صاحبہ کی اجازت سے۔ جی بالکل۔ زندگی بھر زندگانی کو ترستے زندگی، زندگی بھر زندگانی کو ترستے زندگی،
आंधियों से शम्मा की मानिंद लड़ती जिंदगी। वाह 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 क्या बात है। क्या मिसरा है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। आंधियों से शम्मा की मानिंद लड़ती जिंदगी। बहुत अच्छे। सीनाए सहरा की किस्मत में अजल से प्यास है। सीनाए सहरा की किस्मत में अजल से प्यास है। क्यों समंदर पर घटा जाके बरसती जिंदगी। क्या बात है। क्या कहेंगे, सीनाए सहरा की किस्मत में अजल से प्यास है। क्यों समंदर पर घटा जाके बरसती जिंदगी। बहुत शुक्रिया। रंग खुशबू तितलियां और बुलबुलें सब ख्वाब है। रंग खुशबू तितलियां और बुलबुलें सब ख्वाब है। क्या बात। आग धुआं बुग़्ज़ और नफरत में है जलती जिंदगी। बहुत खूब। आग धुआं बुग़्ज़ और नफरत में है जलती जिंदगी। वाह जी वाह वाह। पहले तो जिंदा ज़मीं में गाड़ दी जाती थी वो। पहले तो जिंदा ज़मीं में गाड़ दी जाती थी वो। अब सिसकती बिलकती पल पल को लुटती जिंदगी। अब सिसकती बिलकती पल पल को लुटती जिंदगी। हाथ टूटे ऐ खुदा जो है खिलौने तोड़ते। क्या मिसरा है, क्या मिसरा है। हाथ टूटे ऐ खुदा जो है खिलौने तोड़ते। आमीन। अर्श की जानिब निगाहें आह भरती जिंदगी। अर्श की जानिब निगाहें आह भरती जिंदगी। मुकर्रर शाद बहुत जबरदस्त मुकर्रर। हाथ टूटे ऐ खुदा जो है खिलौने तोड़ते। अर्श की जानिब निगाहें आह भरती जिंदगी। आहें भरती जिंदगी। आतिशे सोजा जला देगी उन्हें भी एक दिन। आतिशे सोजा जला देगी उन्हें भी एक दिन। है इसी उम्मीद पर अब तक सुलगती जिंदगी। बहुत खूब। है इसी उम्मीद पर अब तक सुलगती जिंदगी। और आखिरी शेर अर्ज है। एक मसीहा की नजर हो जाए के है नीम जान। वाह वाह।
ایک مسیحا کی نظر ہو جائے کہ ہے ہو نیم جان جائے کہ ہے نیم جان دم سے اس کے جاگ اٹھے مسکراتی زندگی بہت خوب بہت خوب بہت خوب زندگی بھر زندگانی کو ترستی زندگی آندھیوں سے شمع کی مانند لڑتی زندگی اجازت ہے ایک اور پڑھنے کی جی جی پڑھیں بہت خوب بھائی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ یہ آپ کی اجازت سے ایک اور غزل پیش کرتا ہوں جی جی کوئی لہر مجھ کو اچھال دے کوئی لہر مجھ کو اچھال دے کوئی لہر مجھ کو اچھال دے مجھے گردشوں سے نکال دے کوئی لہر مجھ کو اچھال دے مجھے گردشوں سے نکال دے میں سحاب ہوں کہ حباب ہوں میں سحاب ہوں کہ حباب ہوں مجھے رخ پہ دریا کے ڈال دے کوئی لہر مجھ کو اچھال دے واہ مجھے محمد رفیع کا خیال آ رہا ہے ہاں بالکل کیا رنگوں میں مجھے منقسم کیا رنگوں میں مجھے منقسم مجھے پھر سے نور میں ڈھال دے کوئی لہر مجھ کو اچھال دے دل مضطرب کو سوا کرے دل مضطرب کو سوا کرے مجھے ایسی سر اور تال دے کوئی لہر مجھ کو اچھال دے واہ واہ کمال ہے بھائی صورتحال تو ملی ہوئی آپ کو وہی سرتال آواز شاعری سبھی بہت اچھا کمبینیشن ماشاء اللہ میرا حرف دمک اٹھے میرا حرف دمک اٹھے وہ متائے حسن خیال دے کوئی لہر مجھ کو اچھال دے جو نظر میں ہو تیری معتبر جو نظر میں ہو تیری معتبر مجھے ایسا ہنر خیال دے کوئی لہر مجھ کو اچھال دے بہت اچھے تجھے دیکھ لوں پس آئینہ تجھے دیکھ لوں پس آئینہ مجھے ایسی چشم کمال دے کوئی لہر مجھ کو اچھال دے تیرے گیت گاؤں میں رات دن تیرے گیت گاؤں میں رات دن
मेरी रूह में वो धमाल दे, कोई लहर मुझको उछाल दे। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। आखिरी शेर, जो मैं करना चाहूं वो कर सकूं, जो मैं करना चाहूं वो कर सकूं, मुझे इस कदर माहो साल दे, इस कदर माहो साल दे, कोई लहर मुझको उछाल दे, वाह वाह वाह, गर्दिशों से निकाल दे, कोई लहर मुझको उछाल दे। माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहुत ये खूब। थे हमारे अब्दुल हमीद हमीदी साहब कनाडा से। तो अब मैं सदर साहिबा मजलिस से गुजारिश दरख्वास्त करूंगा कि मुझे भी एक गजल पेश करने की इजाजत फरमाएं। जी जरूर। तो आपका राना साहब अपना कैमरा सेट कर लें, आप आधे नजर आ रहे हैं। अच्छा, कैमरा आज सेट हो नहीं रहा, पता नहीं क्या। अब ठीक है, ये अब ठीक है, अब फिर वही हो और गया। थोड़ा सा अब ठीक है, अब आप ऊपर नीचे हो रहे हैं। होना पड़ता है, क्या करें। चलो खैर, आज आवाज भी कम आ रही है। जी हाँ जी। आप भी अगर दिल से हमको प्यार करना छोड़ दें, आप भी अगर दिल से हमको प्यार करना छोड़ दें, हम गिरेबानों को अपने तार करना छोड़ दें। क्या बात है, बहुत खूब। गिरेबानों को अपने तार करना छोड़ दें। आपके रुखसार पर है आफताबी एक तपश, वाह, आपके रुखसार पर है आफताबी एक तपश, गुर्बतों से अब हमें बीमार करना छोड़ दें। बहुत खूब। लुट रहे हैं आपके हाथों से लाले बेबहा, लुट रहे हैं आपके हाथों से लाले बेबहा, आप ना इस दहर को दरदार करना छोड़ दें। दरदार करना छोड़ दें। बड़ी जहरीली गजल है। सोच के जिंदा से निकली हसीना वक्त की, हसीना वक्त की, सोच के जिंदा से निकली हसीना वक्त की, गैर मुमकिन है कि हम दीदार करना छोड़ दें। सही कहा, गैर मुमकिन है कि हम दीदार ये नेचर है ना जी, मैं इंसान की नेचर पर बात कर रहा हूँ। बदलो नहीं, छोड़ देंगे आपका हम नाम लेना शेर में। वाह 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 वाह, छोड़ देंगे आपका हम नाम लेना शेर में, आप हमसे इश्क में तकरार करना छोड़ दें। क्या कहने, इसे कहते हैं अग्रेसिव, प्रोग्रेसिव नहीं, अग्रेसिव पोएट्री। बन के रूई उड़ गए हैं इश्क के कोहे गिरां, बन के रूई उड़ गए हैं इश्क के कोहे गिरां, आप भी उस शाख को संसार करना छोड़ दें। आपको संसार करना छोड़ दें। हाय हाय हाय, बारूद है बारूद। हम ना लेंगे चारागर का नाम भी आसी कभी, हम ना लेंगे चारागर का नाम भी आसी कभी, आप घर अपनी नजर से वार करना छोड़ दें। वार्निंग भी देते हैं। आप भी घर दिल से हमको प्यार करना छोड़ दें, हम गिरेबानों को अपने तार करना छोड़ बहुत खूब आतिश साहब, जबरदस्त, खूब राना साहब, बहुत अच्छा, जबरदस्त। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। तो अब
माशाल्लाह सोए को जुगा दिया आपने। हमारे शायर हैं मोहतरम डॉक्टर इसाक साजिद साहब जर्मनी के, ये समंदर इंटरनेशनल के एडिटर भी हैं और इनकी काफ़ी कुतुब ये शाया कर चुके हैं। ये काफ़ी कुतुब की तौसीह में तनकीद में भी बहुत लिखते हैं और ये जोड़े भी बहुत अच्छे लिखते हैं। माशाल्लाह अदब को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं जर्मनी में और इनकी काफ़ी किताबें शाया हो चुकी हैं जो मैं मेरे पास भी हैं और मैं खुद पढ़ता भी हूँ। माशाल्लाह अदब की बहुत खिदमत कर रहे हैं। मशायरों की भी जान है। मशायरों को करना, मुनक़िद करना और लोगों से राब्ते करने, हमारे सब मशायरों को यही तंजीम करते हैं। तो मैं अब उन्हें उनकी खिदमत में दरख्वास्त करता हूँ कि आएँ जनाब, अपने कलाम से नवाजें। मोहतरम डॉक्टर इसहाक साजिद साहब। जी शुक्रिया राना साहब। मोहतरमा सदर साहब की इजाजत से बहुत जी, जरूर जी। हजरात, मोहसिन एहसान के हवाले से हम आज उनकी याद को ताज़ा कर रहे हैं। तो जो उसमें कदर मुशरक है वो ये है कि आपकी पैदाइश भी 22 सितंबर को है, वफात भी 22 सितंबर को है। वाह वाह वाह, क्या बात। यानी 22 सितंबर 1933 और वफात 22 सितंबर 2010 लंदन में हुई थी। तो अशार तो लोगों ने उनके सुना दी हैं, जो मैंने लिखे थे वो पहले से लोगों ने सुना दी हैं। तो मैं अपने एक पहले कथा पेश कर देता हूँ, उसके बाद एक गीत पेश करूंगा। तरन्नुम से। जी बिल्कुल, आपका हुक्म। अभी सदर साहबा मोहतरमा ने तस्वीर के बारे में बात की थी, तो एक कथा है कि सोचता हूँ कि उनसे ये पूछूं, सोचता हूँ कि उनसे ये पूछूं, किसने तजवीज ये बताई है, तुमने अपने निगार खाने में मेरी तस्वीर क्यों लगाई है। जिनसे आपने पूछना है उनका नाम भी बता दें। मैं गीत पेश करता हूँ, आ जाएगा। आप सबकी नजर है गीत। जी। खेल चुके तुम खेल पुराना, खेल चुके तुम खेल पुराना, खत्म करो अब ये अफसाना, बंद करो ख्वाबों में आना, खेल चुके तुम खेल पुराना। मिलने की उम्मीद नहीं है, किस्मत में अब दीद नहीं है, फिर क्यों झूठी मिलने की उम्मीद नहीं है, किस्मत में अब दीद नहीं है, फिर क्यों झूठी आस लगी है, क्यों सच्ची हर बात लगी है। छोड़ो भी दिल को तड़पाना, बंद करो ख्वाबों में आना। आपने ऐसे जॉन याद करा दिए, आज बड़े गुलकार आ गए। शुक्रिया। अब के तुम क्या दूर हुए हो, मिलने से मजबूर हुए हो, अब के तुम क्या दूर हुए हो, मिलने से मजबूर हुए हो, हमको यूं ही बहलाते हो, हमको यूं ही बहलाते हो, देखें अब के कब आते हो, और ना ढूंढो कोई बहाना, बंद करो ख्वाबों में आना। वाह वाह, सजती है फिर कोई महफिल, सजती है फिर कोई महफिल, याद तुम्हें फिर करता है दिल, हर मंजिल
ہر منظر دل کو باتا ہے، ہوش مگر جب آ جاتا ہے، گر ہو جاتا ہے ویرانہ، بند کرو خوابوں میں آنا، کھیل چکے تم کھیل پرانا، ختم کرو اب یہ افسانہ۔ شکریہ بہت ماشاء اللہ، زبردست زبردست، اسحاق صاحب کیا کمال ہے، واہ واہ۔ اچھا شکریہ محبت آپ کی۔ ایک اور ہو جائے، ڈاکٹر صاحب فرمائش کر سکتا ہوں، ایک اور سنا دے؟ اچھا لے جی جی سامعین کے پر زور اصرار پر۔ اچھا میں ایک سنا دیتا ہوں آپ کو گیت، اب میں ایک ہی تیار کر کے رکھا تھا، میں نکالتا ہوں۔ ترنم ہو تو مزہ آتا ہے، آواز اچھی ہو۔ اچھا ماجد بھائی یہ ترنم میں پیش کروں گا، گیت تو میں خیر ترنم میں پیش کرتا ہوں۔ وہ کشتی والا دیکھ لے، کشتی والا پتہ نہیں آپ کو مجھے ذہن میں نہیں آ رہا۔ کشتی والا رہنے دیں، آج کل دریا چڑھے ہوئے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو پسند آئے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ سنائیے ارشاد۔ یہی گیت گاتے ہیں گاتے رہیں گے، خدا کی قسم ہم تمہارے رہیں گے، اچھا ہے، بنائیں گے ہم پیار کا آشیانہ، جسے چھو نہ پائے گا ظالم زمانہ، یہیں پنکھ بنائیں گے ہم پیار کا آشیانہ، جسے چھو نہ پائے گا ظالم زمانہ، یہیں پنکھ اپنے یہیں پنکھ اپنے پسارے رہیں گے، خدا ہم تمہارے رہیں گے، اگر تم رہو گے نظر میں ہماری، اگر تم رہو گے نظر میں ہماری، اجالا کرو گے جو دل میں جگر میں، تو نظروں میں روشن نظارے رہیں گے، خدا کی قسم ہم خطا بھولے سے جو ہو جائے ہم سے، نہ تعبیر کرنا اسے تم ستم سے، خطا بھول سے بھی جو ہو جائے ہم سے، نہ تعبیر کرنا اسے تم سے، تمہارے ہیں کل بھی تمہارے ہیں کل بھی تمہارے رہیں گے، خدا بہت ہو تمہارے رہیں گے۔ اور آخری بند ہے، محبت حقیقت محبت فسانہ، محبت حقیقت محبت فسانہ، ہو کچھ بھی مگر ہے خوشی کا خزانہ، تمہیں سے تھے ہم تمہیں سے تھے ہم تم ہمارے رہیں گے، خدا کی قسم ہم تمہارے رہیں گے، یہی گیت گاتے گاتے رہیں گے، خدا کی قسم ہم تمہارے رہیں گے۔ شکریہ جی، بہت خوب ساجد بھائی، لاجواب، بہت شکریہ، مہربانی، بہت محبت، زبردست مزہ آ گیا، شکریہ جی۔ اب میں دعوت کلام دوں گا جناب محترم ڈاکٹر منور احمد کنڈے صاحب، جن کی 10 کتابیں آ چکی ہیں، ادب کی بہت خدمت کی ہے انہوں نے، بہت اچھے نظم غزل پڑھنے والے، اور ڈاکٹر بھی ہیں ہومیوپیتھک، یہ بچپن سے لندن میں مقیم ہیں، اور اردو کی بہت خدمت کی ہے، اور مشاعروں کو منظم کرنے میں بھی ان کا بڑا عمل دخل ہے،
اور بہت اچھی سنجیدہ شاعری کرتے ہیں. میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آئیں اپنے کلام سے نوازیں. جی بہت بہت شکریہ جناب رانا صاحب. میں محترمہ صدر صاحبہ کی اجازت چاہتا ہوں. جی ضرور. شکریہ. آج کا مشاعرہ محسن احسان صاحب کی یاد میں ہے. وہ ہماری یادوں میں زندہ ہیں. ان کا انتقال سے پہلے وہ ہومیوپیتھک علاج کے سلسلے میں خاکسار کے ساتھ طویل عرصہ تک رابطے میں رہے تھے. وہ یہاں کوونٹری میں ہی ان کا انتقال ہوا. ان کی ایک بیٹی یہاں کوونٹری میں ہے برطانیہ میں. بہت خوبصورت انسان, بہت اعلیٰ اخلاق, تعصب اور منافرت کا نام و نشان نہیں تھا. محبت سے بھرے ہوئے انسان تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. احمد فراز اور محسن احسان صاحب ایک ہی استاد کی صحبت میں رہا کرتے تھے. اور احمد فراز صاحب سے ان کے استاد محترم نے فرمایا کہ تم اردو یا فارسی میں ایم اے کرنا, اور محسن احسان صاحب کو حکم دیا کہ آپ انگریزی میں ایم اے کرنا. تو ایسا ہی ہوا. محسن احسان صاحب نے انگریزی میں ڈگری کی تھی. تو محسن صاحب کی ایک نظم ہے سانولے مہتاب, وہ میں اب دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں, کیا پوچھتے ہو یارو کہ مدت سے ایک غزال, کیا پوچھتے ہو یارو کہ مدت سے غزال, دل کے اجاڑ دشت میں کھولے ہوئے ہے بال. بہت خوب, بہت خوبصورت شعر ہے. سادہ سی آنکھ پھول سے لب سانولا سا رنگ, سادہ سی آنکھ پھول سے لب سانولا سا رنگ, قامت میں مجھ سے کم مگر ابر رواں کی چال. ہنس دے تو ہونٹ تنجے گلو یا سمن لگیں, روئے تو آنسوؤں پہ ہو شبنم کا احتمال. خلوت میں مجھ سے رہتی ہے پہروں وہ ہم کلام, خلوت میں مجھ سے رہتی ہے پہروں وہ ہم کلام, جلوت میں گر ملے تو نہیں میری ہم خیال. بہت خوب. شیلے کو سوز کیٹس کا درد ایلیٹ کا غم, شیلے کا سوز کیٹس کا درد ایلیٹ کا غم, باتیں ہیں اس کی جیسے ادب کا کوئی سوال. واہ کیا کہنے. بہت خوب. اور مکتا ہے, میں مطمئن کے دل سے مجھے چاہتی ہے وہ, میں مطمئن کے دل سے مجھے چاہتی ہے وہ خوش کے دوست اس کا ہے محسن سا خوش خصال. بہت خوبصورت نظم ان کی. اب میں محترمہ صدر صاحبہ سے اجازت چاہتا ہوں, ایک غزل پیش کرنا چاہتا ہوں. بالکل جی اجازت ہے. بار بار اجازت طلب کر کے مجھے اس سے دل کو تسلی رہتی ہے. کمال ہے. عرض کیا ہے کہ میری کشتی کے مقدر میں کنارہ اب نہیں, میری کشتی کے مقدر میں کنارہ اب نہیں, یہ ہے سچائی کے ساحل کا, یہ ہے سچائی کے ساحل کا سہارا اب نہیں. میری کشتی کے مقدر میں کنارہ اب نہیں, یہ ہے سچائی کے ساحل کا سہارا اب نہیں. بھائیوں کی بھیڑ تو ہے گھر کے آنگن میں بہت, بھائیوں کی بھیڑ تو ہے گھر کے آنگن میں بہت, یہ مگر سچ ہے کہ ان میں بھائی چارہ اب نہیں. حقیقت ہے. بھائیوں کی بھیڑ تو ہے گھر کے آنگن میں بہت,
یہ مگر سچ ہے کہ ان میں بھائی چارہ نہیں. واہ واہ کیا بات ہے. شکریہ. یہ سفر تو اب اندھیری رات میں کرنا ہے طے. یہ سفر تو اب اندھیری رات میں کرنا ہے طے. آسماں پر میرے حق میں کوئی تارا اب نہیں. اس لیے ہم جا رہے ہیں چھوڑ کر عیش و طرب. اس لیے ہم جا رہے ہیں چھوڑ کر عیش و طرب. محفل اغیار میں کوئی ہمارا اب نہیں. اس لیے ہم جا رہے ہیں چھوڑ کر عیش و طرب. محفل اغیار میں کوئی ہمارا اب نہیں. شکریہ. اس لیے ہے گھر کے آنگن میں اندھیروں کا ہجوم. اس لیے ہے گھر کے آنگن میں اندھیروں کا ہجوم. میرے پہلو میں وہ میرا ماہ پارا اب نہیں. واہ 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 ڈاکٹر صاحب بہت خوب. بہت خوب. اس طرح ٹوٹے منور اپنے ہی حالات سے. بہت خوب. اس طرح ٹوٹے منور اپنے ہی حالات سے. دکھ برائے جھیلنے کا ہم یارا. کیا خوب ہے. میری کشتی کے مقدر میں کنارہ اب نہیں. یہ ہے سچائی کے ساحل کا سہارا اب نہیں. بہت بہت شکریہ. ایک اور سنائیے گا. ایک اور ہو نا. ایک اور ہو. اچھا کیونکہ اجازت لے لے ویسے. کوئی نہیں. اجازت. کیونکہ ایک دم جانا گوارا اب نہیں. بہت خوب. جواب. پھولوں سے تتلیوں سے محبت نہیں رہی. پھولوں سے تتلیوں سے محبت نہیں رہی. دنیا رنگ و بو کی ضرورت نہیں رہی. اس کو بھی دل کے بدلے میرے دل کی چاہ ہے. اس کو بھی دل کے بدلے میرے دل کی چاہ ہے. اب بے غرض تو کوئی تجارت نہیں رہی. اس کو بھی دل کے بدلے میری دل کی چاہ ہے. اب بے غرض تو کوئی تجارت نہیں رہی. جو مہرباں ہو اپنی رعایا پہ ہر گھڑی. جو مہرباں ہو اپنی رعایا پہ ہر گھڑی. دنیا میں ایسی کوئی حکومت نہیں رہی. کیا بات. جو مہرباں ہو اپنی رعایا پہ ہر گھڑی. دنیا میں ایسی کوئی حکومت نہیں رہی. مظلومیت کے حق میں جو پرچم اٹھا سکے. مظلومیت کے حق میں جو پرچم اٹھا سکے. لوگوں میں آج اتنی جسارت نہیں رہی. مظلومیت کے حق میں جو پرچم اٹھا سکے. لوگوں میں آج اتنی جسارت نہیں رہی. کچھ اس طرح بدل گئے انداز زیست کے. کچھ اس طرح بدل گئے انداز زیست کے. رشتوں میں پہلے جیسی مروت نہیں رہی. اور مقترض کرتا ہوں. برباد ہو گیا ہوں منور میں اس طرح. برباد ہو گیا ہوں منور میں اس طرح. دنیا کو آج میری ضرورت نہیں. دنیا سے محبت نہیں رہی. دنیا رنگ و بو کی ضرورت نہیں رہی. بہت اچھا کلام آپ کا تھا. ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. بہت اچھی. شکریہ بہت بہت ڈاکٹر صاحب. اچھا فریدہ فری صاحبہ ہیں شامل مشاعرہ؟ فریدہ فری صاحبہ کوئٹہ سے جن کا تعلق ہے موجود ہیں؟ نہیں نظر نہیں آ رہی. لسٹ میں تو نہیں ہے. ڈاکٹر لبنہ اکس صاحبہ وہ ایک دفعہ آئی تھی لیکن پھر وہ بھی کہیں غائب ہو گئی. ڈاکٹر لبنہ اکس صاحبہ بھی نہیں ہیں. صاحبہ کی اجازت سے اگر ایک نظم ایک غزل میں اور پیش کر سکوں. آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل انٹرٹینمنٹ اسکوائر.
हाँ जी दोस्तों, आपको बता दें कि इंडियन आइडल के इस हफ्ते में 2 नए आवाज म्यूट रखा करें प्लीज, ये सारे हमें खबरें ना सुनाया करें, खुद सुना करें। नहीं वो टाइम नहीं है चुगताई साहब, आपको फिर मौका देंगे इंशाल्लाह। तो अब मेहमान ये रह गए, हमारे सदर साहबा रह गई हैं, मैं अब इनकी खिदमत में गुजारिश करूंगा। नहीं, कुदसी साहब भी आ गए हैं। अच्छा हाँ, कुदसी साहब नजर आ रहे हैं, कुछ पेश करना चाहें? माशाल्लाह अदीम शायर हैं, इनका सिलसिला जो खिदमत का उर्दू का है 19वीं सदी पर फैला हुआ है। कुदसी साहब पढ़ेंगे कुछ? कुदसी साहब के लिए हमारे डॉक्टर इसाक साजिद साहब पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ डॉक्टर साहब पढ़े उनका कलाम, क्योंकि उनका कुछ गला खराब है, वो पढ़ नहीं सकते। जी जी, मैं एक गजल तरानों से पेश कर देता हूँ। अरशाद। इनकी किताब मेरे पास मौजूद है, अश्के रवां, उसमें से गजल मोहतरम जनाब अब्दुल करीम कुदसी साहब किसी तो सदर साहब से इजाजत ले लें। हाँ इजाजत ले लें, इजाजत जरूरी है। अगर मैं इजाजत ना दूं तो इसलिए इजाजत ना मांगे। नहीं नहीं पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, ना भी कर सकती हैं। सदर बनाया हुआ है। ये कलाम है जनाब मोहतरम अब्दुल करीम कुदसी साहब का, मैं पेश करता हूँ। ज़माने से गिले शिकवे नहीं है, वाह, ज़माने से गिले शिकवे नहीं है, मेरे अपने नहीं है। वाह वाह वाह, ज़माने से गिले शिकवे नहीं है, क्या बात, मेरे अपने नहीं है। वाह वाह। जहाँ ज़हरे तसब हो वहाँ पर, जहाँ ज़हरे तसब हो वहाँ पर, हकीकत के कमल खिलते नहीं हैं। बहुत और शेर है उनका बड़ा खूबसूरत। अदू से जिंदगी की भीख मांगे, अदू से जिंदगी की भीख मांगे, हम इतने भी गए गुजरे नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है। अदू से जिंदगी की भीख मांगे, इतने भी गए गुजरे, हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं। उनका एक खूबसूरत शेर है। लहू के दूध के रिश्ते बहुत हैं, लहू के दूध के रिश्ते बहुत हैं, मोहब्बत के मगर रिश्ते नहीं हैं। वाह वाह क्या बात है, क्या बात, क्या बात। ओ मरीज़े इश्क लंबी उम्र पाए, मरीज़े इश्क लंबी उम्र पाए, मगर आसार तो अच्छे नहीं है। क्या बात है, क्या बात। उनका एक और शेर बहुत खूबसूरत है। मजावर भी उन्हें क्यों याद रखें, मजावर भी उन्हें क्यों याद रखें, के जिनकी कब्र पर कत्ले नहीं है। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। मजावर भी उन्हें क्यों याद रखें, के जिनकी कब्र पर कत्बे नहीं है। लिए जो धूप में छाँव के कर्जे, लिए जो धूप में छाँव के कर्जे, रुतें गुजरी अभी उतरे नहीं है। लिए जो धूप में छाँव के कर्जे, रुतें गुजरी अभी उतरे नहीं है। और मक्तर्ज है कुछ साहब का। रकम करते हैं जो कागज पे कुदसी,
रकम करते हैं जो कागज पर कुर्सी, हकायक हैं कोई किस्से नहीं है, बहुत खूब। जमाने से गिले शिकवे नहीं है, मेरे अपने नहीं। बहुत खूब। कुछ साहब तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है? हाँ जी, हाँ, नहीं तबीयत ठीक है, बस गला ही खराब है। माशाल्लाह बात होती रहती है इनसे। तो इनका तो कलाम पूरी निसर सदी पर फैला हुआ है, काफी अवार्ड ले चुके हैं। अब तफसीर मेरे सामने नहीं है, मसूद खदर पोश अवार्ड, वो और भी हैं कि मुझे याद नहीं है जो तफसील, फिर मैं ये साहिल लुधियानी साहब के शागिर्दों में से हैं। जी जी ये भी बता दें। तो माशाल्लाह ये हमारे लिए बड़ी हमारी हौसला अफजाई की है जो आ गए हैं। कुर्सी साहब हमारे मुशायरों में आते रहते हैं, तशरीफ लाते रहते हैं। अल्लाह ताला इनको सेहतमंद रखे। आमीन। अब मैं गुजारिश करूंगा मोहतरमा सदर साहिबा मजलिस की खिदमत में कि वो अपना कलाम सुनाए। ये मैं इनका तारफ़ करवाता चलूँ। इनका नाम फरीन चौधरी है, तल्लक इनका इस्लामाबाद से है। नसरी कुतुब इनकी शाया हो चुकी हैं। एक मजमूआ कलाम भी मंजर आम पर आ चुका है। भारत और पाकिस्तान से बहुत से कल्चरल अवार्ड इनको मिल चुके हैं। बहुत से फील्ड में बहुत मुफीद काम कर रही हैं। आज हमारी खुशबख्ती है कि ये आई हैं, तो सदारत की है हमारे मुशायरे की। हम इनके मशहूर हैं। मैं इनकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि आएँ अपना कलाम पेश करें। मोहतरमा फरीन चौधरी साहिबा। वो पिछली दफा एक और अवार्ड भी था, अच्छा आपने वो नहीं बताया। अच्छा क्या? वो एक था, मुझे तो याद नहीं रहा। वो तफसील आ जाएगी फिर। अच्छा बहुत शुक्रिया। मुझे आज के मुशायरे में मेहमान खुसूसी बुलाया, पर वो जिसे कहते हैं ना, वो क्या लेने गए थे, आग लेने गए थे, खुदाई मिल गई। तो आज की सदारत भी आप सब सीनियर लोगों के सामने, एक तो मुझे शर्म आ रही है सदारत करते हुए। आप लोगों की मोहब्बत और कंदील शेरो सुखन का बहुत शुक्रिया, इसाक साजिद साहब का बहुत शुक्रिया, राना अब्दुल रज़ाक साहब का बहुत शुक्रिया, और आप सब लोगों का, क्योंकि आज माशाल्लाह मुशायरा इतना भरपूर रहा। और जो आप लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत तरन्नुम के साथ सुनाया, वो तो कमाल रहा वाकई। माशाल्लाह कलाम सबका बहुत अच्छा था। उसके बाद मैं क्या पेश करूं? चंद अशार है, एक गजल और एक नज़्म छोटी सी। अब मैं किससे इजाजत लूं? अपने आप से इजाजत। मैं आप सबसे इजाजत लेती हूँ। चंद अशार है, अर्ज है कि जिसकी छाँव हमारे सर पे रही, जिसकी छाँव हमारे सर पे रही, वो घना पेड़ भी तो जलता है। जिसकी छाँव हमारे सर पे रही, वो घना पेड़ भी जलता है। और चांद को आंगनों से जाने दो, चांद को आंगनों से जाने दो, ताक में भी जलता है। क्या बात है, बहुत अच्छा। चांद को आंगनों से जाने दो, एक दिया ताक में भी जलता है। और के चंद चार में सुना रही हूँ। कैसे तोड़ेगा तीरगी का फसूं, कैसे तोड़ेगा तीरगी का फसूं, वो तो खुद रोशनी से डरता है। कैसे तोड़ेगा तीरगी का फसूं, वो तो खुद रोशनी से डरता है। और फूंक डाला था जिसने बस्ती को, फूंक डाला था जिसने बस्ती को, आज उसका मकान जलता है। डाला था जिसने बस्ती को, आज उसका मकान जलता है। और एक और इस गजल का शेर है कि घाव लम्हों की बेवफाई का, घाव लम्हों की बेवफाई का, आज सदियों के जाके भरता है। लम्हों की बेवफाई का, बाद सदियों के जाके भरता है। अच्छा, अब एक पेशे खिदमत है कि सूरज था चांद था, कोई घटता चला गया।
सूरज था चांद था कोई घटता चला गया, हर दिन मेरे नसीब का ढलता चला गया। सूरज था चांद था कोई घटता चला गया, हर दिन मेरे नसीब का ढलता चला गया। मैं मांगती ही रह गई साये की जिंदगी, मैं मांगती ही रह गई साये की जिंदगी। सूरज मेरे वजूद में जलता चला गया। बहुत खूब। मैं मांगती ही रह गई साये की जिंदगी, सूरज मेरे वजूद में जलता चला गया। और ये कि इतने करीब था कि मैं भूल ही रही उसे, इतने करीब था कि मैं भूल ही रही उसे, रस्ते के मेरे खार जो चुनता चला गया। इतने करीब था कि मैं भूल ही रही उसे, रस्ते के मेरे खार जो चुनता चला गया। और उसका कसूर क्या, मेरी मट्टी ही नरम थी। उसका कसूर क्या, मेरी मट्टी ही नरम थी। आया प्यार बन के बरसता चला गया। मेरी मट्टी ही नरम थी, आया प्यार बन के बरसता चला गया। क्या बात। इसका आखिरी शेर है कि फरहीन रोक लूं मैं उसे दे के एक सदा, फरहीन रोक लूं मैं उसे दे के एक सदा, लेकिन अगर वो सुन के भी बढ़ता चला गया। फरहीन रोक लूं मैं उसे दे के एक सदा, लेकिन अगर वो सुन के भी बढ़ता चला गया। और एक नज्म है शिकवा, इसका उन्वान है शिकवा। दिया है ज़ौक़ के रिहाई दिलों में शौक के जुनून, ये बालों पर मेरे पत्थर में ढाल कर तूने। दिया है ज़ौक़ के रिहाई दिलों में शौक के जुनून, ये बालों पर मेरे पत्थर में ढाल कर तूने। मेरी तलाश मुझे बेनवा यूं कर देगी, मेरी तलाश मुझे बेनवा यूं कर देगी, मेरे वजूद को रुस्वा जहां में कर देगी। मेरी तलाश मुझे बेनवा यूं कर देगी, मेरे वजूद को रुस्वा जहां में कर देगी। मेरी अना मेरी खुददारियों की पामाली, मेरी अना मेरी खुददारियों की पामाली, हजार टुकड़ों में बटकर मैं कैसे जिंदा रहूं। हाँ मेरी खुददारियों की पामाली, हजार टुकड़ों में बटकर मैं कैसे जिंदा रहूं। तमाम रास्ते मजबूरियों ने चाट लिए, तमाम रास्ते मजबूरियों ने चाट लिए, शिकस्ता पुल के तले दूर गहरी खाई है। तमाम रास्ते मजबूरियों ने चाट लिए, शिकस्ता पुल के तले गहरी खाई है। गहरी का। और एक छोटी सी नज्म है कि बिल्कुल छोटी सी, इसके बाद इजाजत चाहूंगी कि निकल गए। वही दरपेश है दरिया जो पहले पार कर आई, वही दरपेश है दरिया जो पहले पार कर आई, मगर इस बार हाथों में मेरे कच्चा घड़ा भी है। वही दरपेश है दरिया जो पहले पार कर आई, मगर इस बार हाथों में मेरे कच्चा घड़ा। बहुत शुक्रिया आप सबका। तरन्नुम से एक तरन्नुम से भी हो जाए। एक सॉरी, आज बियादे मोहसिन एहसान थी, तो मुझे अभी शेर पढ़ते पढ़ते याद आ गया कि उनसे मेरी जो मोहसिन एहसान साहब से जो पहली मुलाकात हुई थी, उस वक्त मैं भी फर्स्ट ईयर में आई थी, F72 कॉलेज इस्लामाबाद में थी। तो पिशावर में, चूंकि मैं डिबेटर भी थी, शायरा, तभी से ही सारा कुछ अफसाने शायरी चलती थी। तो पिशावर फ्रंटियर कॉलेज में वो एक जैसे होता है ना कि डेक्लामेशन और डिबेट्स का जो सालाना वो होता है, उस हम भी इनवाइटेड थे। हमारे कॉलेज से भी 4 हम लड़कियां गई। तो मोहसिन एहसान मुझे याद है उस जमाने में, खातिर गजनवी और मोहसिन एहसान साहब, उन दोनों की मुशायरे की रात सदारत थी गोल्डन नाइट पे।
اور محسن احسان کی تصویریں تو میں دیکھتی رہتی تھی، میں سمجھتی ہوں انتہائی خوبصورت شاعر تھے وہ، صرف شاعری نہیں ایک پرسنالٹی، شخصیت کے حساب سے۔ پرسنالٹی بھی ان کی تھی، میں بھی ان کو ملا ہوں۔ اب آپ کو پتا ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی کتنی کچی سی پیاری سی عمر ہوتی ہے، وہ ہمیں ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی یونانی دیوتا، اتنے خوبصورت، اتنے ہینڈسم، دونوں پیارے تھے، لیکن محسن احسان صاحب کی بات ہی کچھ اور تھی، ہم لڑکیاں بالکل ان کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ تو مجھے ابھی بھی یاد ہے، وہ میرے پاس ڈائری، ایک میرے پاس چھوٹی سی ڈائری تھی، تو مجھے وہ یاد نہیں، میں ڈھونڈ رہی تھی، مجھے ملی نہیں، میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے کہیں، اس پہ پھر انہوں نے مجھے اپنا آٹوگراف دیا محسن احسان صاحب نے، اور وہ ان سے ملاقات، پھر ایک دفعہ وہ اسلام آباد آئے تو پھر مجھے، میں ان کو یاد تھی، مجھے کہتے ہیں تم بڑی شرارتی لڑکی ہو، چھوٹی سی تھی اس میں ظاہر ہے، تو میں نے کہا، میں نے کہہ دیا، میں نے کہا آپ اتنے ہینڈسم ہیں، آپ کو دیکھ کے میں شرارتیں بھول گئی تھی۔ زندگی کا پارٹنر میری شکل جیسا ملے۔ اچھا، خوبصورت ایک یاد ہے ان کے حوالے سے۔ پھر ان کی دعا قبول ہوئی؟ بہت شکریہ آپ سب کا مجھے اتنی عزت بخشنے کا، کیونکہ آپ سب بہت سینئر ہیں، وہ صدارت کرتے ہوئے مجھے وہ عجیب سے ہے۔ کچھ ترنم سے سنائیں؟ مجھے ترنم سے نہیں آتا، میں آپ لوگوں کو سن رہی تھی، ٹرسٹ کریں آپ کی تو اسحاق صاحب بالکل وہ ایس پی جان والا سٹائل ہے، اور جو تھے بالکل محمد رفیع والا، تو مجھے تو یہ میں سب بہت انجوائے کر رہی تھی۔ کبھی انشاءاللہ سناؤں گی، لیکن میری اتنی اچھی مجھے گائکی نہیں آتی ہے، ایسے انجوائے کرتی ہوں۔ اچھا، آخر میں خاکسار قندیل شعر و سخن کے سارے منتظمین کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور دعا کرتا ہے کہ آئندہ بھی آپ ہمارے مشاعروں میں شامل ہوں اور ہماری رونقیں ایسی طرح رہیں۔ تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، آنے والوں کا، پڑھنے والوں کا، سب کا۔ تو اسی کے ساتھ ہم محفل کو اختتام کرتے ہیں، تو شکریہ اور خدا حافظ۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، شکریہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔